پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, چاہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو کی کتنے ہی بہت بڑے فنکشن ہوتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وی یوٹیلائز دس. اور یہ جو گراؤنڈ ہے اس کا اپنا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اگر ہم بارہمولہ کی شان کے بارے میں کبھی بات کرتے ہیں تو پہلا نام اگر آتا ہے اس گراؤنڈ کا بھی آتا ہے اور ساتھ میں اس کالج کا بھی آتا ہے. اب چونکہ ایکٹ کا تعلق ہے, ایکوزیشن ایکٹ, اس کا پرپز ہی ہے پبلک پرپز. تو ایک پبلک پرپز کو ڈیفیٹ کر کے آپ دوسرا پبلک پرپز نہیں دیکھ سکتے ہیں. جو آپ پبلک پرپز ڈیفیٹ کر رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ از ملٹی, جو ڈائمینشنل ہے, اس کا جو ڈائمنشن ہے دیٹ از ملٹی پرپز. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وی کین سے دیٹ دس از دا پبلک پرپز. ٹھیک ہے, ایک روڈ ہونا چاہیے, ہم ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے, ایک ہمیں اس ڈیولپمنٹ کی طرف ہم بھی بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن دیٹ نیور مینس دیٹ یو ول مار اے بگر پبلک پرپز جہاں پر ہمیں ایک ٹرین کو چلانا ہے. یو ہیو ادر وینیوز آلسو, یا یو ہیو ادر پاسبلٹیز آلسو اور آلٹرنیٹیوز آلسو, یو کین چوز دیٹ. تو واٹ از دا ریزن کہ ہمیں ہارٹ جہاں سے ہم اس ٹرین کو لے رہے ہیں, دس از دا ان فیکٹ ہارٹ آف دا بارہمولہ. آلریڈی جو یہ سمت رہ گیا ہے, ہماری جو لینڈ ہے آلریڈی سٹیز ہے ہمارے ٹاؤن میں, جبکہ ہم ایک سینٹر سے ایک ٹرین کو لے رہے ہیں. ایک تو ہمارا کالج افیکٹ ہو رہا ہے, جیسے کہ ارشاد صاحب نے, طارق صاحب نے ابھی کہا کہ کچھ ہی سالوں میں, شاید اسی سال یا نیکسٹ ایئر, اس کو ڈیمڈ یونیورسٹی کا شاید ٹائٹل بھی دے دیا جائے. اور اس کی چیز کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی ہم بھی جانتے ہیں, کیونکہ ہم بھی اسی کالج کے پروڈکٹ ہیں, ہم بھی فخر سے یہ بات کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, جب آپ پبلک پرپز کے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں اور ایک اور لارجر پبلک انٹرسٹ کو آپ ڈیفیٹ کر رہے ہیں, بہت نیسسری ہے کہ آپ اس کو پبلک ڈومین میں ڈالیں, تاکہ اف اینی بڈی ہیز آبجیکشن دس شوڈ بی ڈن فرسٹ. اور سب سے بڑی بات, پہلے ہی نوٹیفیکیشن آتی ہے. اٹس ناٹ لائک یو ول فورسفلی پل آؤٹ دا پیپل کہ نہیں بھائی آپ یہاں سے نکلو, اب مجھے یہاں سے راستہ نکالنا ہے. یو ہیو ٹو مینٹلی پریپیئر دا پیپل دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو دس پروجیکٹ. آپ اس پروجیکٹ کو کرنا چاہتے ہیں, پھر اگر کسی کی آبجیکشن ہے, کسی کے مالکانہ حقوقات ہے, کسی کا کوئی اور انٹرسٹ ہے, وہ دے کین اپروچ دا کنسرنڈ اتھارٹیز. اینڈ لائک وائز وہاں سے پی این سیز ہماری ہو جاتی ہے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ, دین وی سٹ. لیکن یہاں پر ایسا کچھ ہمارے اس طرف کو ہے, اس کے بیچ میں سے ایک ڈیمارکیشن ہوئی کہ وہاں سے ایک ریلوے ٹریک پاس ہونے والا ہے. یہ خبر افواہ کی شکل میں کچھ دیر پہلے بھی چلی تھی, لیکن کالج کے پاس کوئی ایسی خط کتابت یا کوئی ایسی چٹھی نہیں آئی جس میں ہمیں کنسنٹ لیا گیا ہو یا ہمیں کہا گیا ہو کہ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی. تو ہم نے جب مصدق طریقے میں کچھ ڈیمارکیشن پولز کو وہاں پر دیکھا, اور جس پر ہم نے جو ریلویز اتھارٹیز ہیں ان سے بات چیت کی, تو انہوں نے کہا یہ صحیح ہے کہ ہم نے یہ ڈیمارکیشن ایک ٹریک کو پاس کرنا ہے وہاں سے. تو البتہ یہ الائنمنٹ ابھی ٹیمپرری ہے, مگر الائنمنٹ ہے اس کے لیے. اسی میں تشویش یہ ہوا کہ چونکہ یہ گراؤنڈ صرف کالج استعمال نہیں کر رہا ہے, اس وقت اس گراؤنڈ پر سب سے پہلے جنرل پبلک وہ استعمال کر رہی ہے بارہمولہ کی. یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ہسٹوریکلی اس گراؤنڈ پر فٹ بال کے وہ میچ ہوا کرتے تھے جو تقریباً ان وہ پلیئر آتے تھے جو پھر موہن بگان یا ایسی نیشنل اور انٹرنیشنل ٹیمز کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اور اس کے بعد جو جنرل یہاں پر ٹورنامنٹس ہوتے رہتے ہیں, جس میں کرکٹ ہے, جس میں باسکٹ بال ایک کورٹ ہے وہاں پر, اس کے میچز ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک منی انڈور اسٹیڈیم بھی ہے جو بہرحال اس ڈیمارکیشن میں ابھی بچا ہوا ہے, لیکن بالکل کوئی 10-12 میٹر کا یا 20 میٹر کا فاصلہ ہوگا بیچ میں, جو اس کے تھرو ایک ٹرین گزرے گی. اس منی انڈور اسٹیڈیم میں صرف ہمارے ہی اسٹوڈنٹس نہیں, جو ہمارا وومنس کالج ہے یہاں سے کوئی 2 یا 3 کلومیٹر دور, تو انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی اس کی پرمیشن دے دیجیے, کیونکہ ہم جو کالج ہے اس کی گورن کرتا ہے, اس کی ایسوسیٹ جو اس کے کیئر ٹیکرس ہیں وہ کالج کے پرنسپل صاحب ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں ایک بار ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو لڑکیاں ہیں ان کے پاس یہ انڈور اسٹیڈیم کی فیسلٹی نہیں ہے. کئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کنزرویٹو فیملی سے آتی ہیں, وہ نہیں چاہتی ہیں کہ وہ ہر ایک کی دید میں یا ہر ایک کی گیز میں کھیلے کودیں یا کوئی اسپورٹس میں شرکت کریں. تو وہ پسند کرتی ہیں کہ اگر ان کو ایک بند اسٹیڈیم میں ہی موقع ملے. ڈگری کالج بارہمولہ, اور پھر اس کے بغیر جو ہمارے باقی جیسے یہاں ہمارے کرکٹ بورڈ کے کچھ ممبرس ہیں یا جو اسپورٹس فورمز ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں, وہ وہاں پر حصہ لیتے رہتے ہیں اور گیمز چلتی رہتی ہے سال بھر. اب جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو ہم نے اپنے سرے سے بہرحال
कोशिश की कि ये पता करें पहले ये मुसद्दिक है, उसके बाद हमने रिक्वेस्ट इस लेवल पत मंजीत सिंह सरगी सर पत रोज बुहन दुहन ये तुम तुमना टेक्निकल स्टाफ 20 days ये रोजा रात तुम गसान पानस आर्मी में मिशन अजीब पेवान 20 days। और जैसे प्रोफेसर तारिक साहब ने हवाला दे दिया स्पोर्ट्स के हवाले से, मैं कुछ बातें आपके नोट्स किया था। नए नए कैंपसेस जो हैं, जिस वक्त ये कॉलेज बन गया उस वक्त आबादी से बहुत ज़्यादा दूर ये समझा जाता था। जब हम पढ़ते थे आज से 40-45 साल पहले यहाँ पर कॉलेज में, तो हमें यहाँ पर आने के लिए जो है बड़े टांगे का इस्तेमाल कर, गाड़ी नहीं मिलती थी, टांगा इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुँच जाते थे। अब तो ये आबादी के बीच में ये कॉलेज आ गया है। मैंने उसको कहा आई टोल्ड हिम कि हमने आज की मीटिंग रखी है एलुमनाई एसोसिएशन की। उसने हेलो की, उसने कहा आप कीजिए एलुमनाई एसोसिएशन। एनवायरनमेंट पढ़ाई के लायक, मैं कम से कम हम ये तस्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे जो हैं, जो फ्यूचर जनरेशन हमारी है, वो एक शोरगुल के माहौल में पढ़ ले। ये क्या बोल मंतल स्कीम से कसा आईपी फिल्टर ये में तेल गसा ना अजून तर जरा खाओ तो ये अभी फैसला पूरा नहीं है। जहाँ तक हमें सुनने में आया है, ये प्रिलिमिनरी जो सर्वे है उतना ही हो गया है। जब तक हम ये चीज़ें देखेंगे कि अगर कोई प्रोजेक्ट किसी पब्लिक पर्पस के लिए लाया जा रहा है, तो उसमें ज़रूरी है कि इंतज़ामिया ये भी देखे कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो तो कहीं उसमें उसको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप इस ग्राउंड की अहमियत देखेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड भी इसके साथ कॉलेज के साथ है, जिसके बीचों बीच एक ये रेलवे ट्रैक निकल रहा है। अगर आप इसकी इफादियत देखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, जो लास्ट हमारे अमित शाह जी थे, जब उनको वेन्यू चूज़ करना था एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे सब वेन्यूज़ को छोड़कर इन्होंने ये वेन्यू चुन लिया, इसलिए क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड है। तो खाली सेंट्रली लोकेटेड नहीं है, बल्कि एसेसिबल टू एवरीबडी है, चाहे वो पार के लोग हैं, चाहे वो इस पार के लोग हैं। तो हर दोनों साइडों को, जिनके बीचों बीच दरियाए जहलम बहता है, हर किसी के लिए एसेसिबल है। और सिक्योरिटी अंदाज से भी अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। अभी यहाँ पर इरशाद साहब इन्होंने भी आपसे ये कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी इनको एक दर्जा दे रहे हैं, तो कितने सालों की मेहनत है। तो मैं यही गुजारिश करूँगी जो हमारे इंतज़ामिया यहाँ पर है, हालांकि उन्होंने हमें एश्योर भी किया है कल कि वो इसमें बिल्कुल दिल से कोशिश करेंगे कि जो ये प्रिलिमिनरी सर्वे है इसका ऑल्टरनेटिव बैक ट्रैक एक हमेशा रहता है। तो उन्होंने हमें एश्योर किया है जितना उनसे हो पाएगा वो कोशिश करेंगे कि ये प्रिलिमिनरी तक की ही लेवल तक रहे, उसके आगे ना बढ़े, और वो कोई ऑल्टरनेट जो ट्रैक होगा उनके पास अवेलेबल होगा, जो हमेशा इनके पास रहता है, तो उसको वो अप्रूव करेंगे। और मेरी यही गुजारिश होगी, देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि हम नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, उसमें कितना हम वेमिनेटली, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें हमारे एसएसपी हैं, कितना ही वो इस अभियान को आगे चला रहे हैं। और ये जो ग्राउंड है इसमें उसका बहुत ही एक अहम रोल है, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं वो इन ड्रग्स से दूर रहते हैं। कल जब आपका मैदान भी नहीं रहेगा तो उस अभियान का क्या होगा, उस यूथ को बचाने का क्या होगा। और यूथ जहाँ पर परेशानियों से वो दूर होकर वो इसी ग्राउंड में आता है, चाहे वो छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, वॉक के लिए यहाँ पर आता है। तो मैं गुजारिश करूँगी इंतज़ामिया से, आप इस प्रिलिमिनरी लेवल की जो सर्वे है इसको रहने दीजिए। आपके पास इतने ऑल्टरनेटिव रूट्स है, अवेलेबल है, आपके पास ज़मीन आपके पास अवेलेबल है। आप मेहरबानी करके पब्लिक इंटरेस्ट जो मल्टीपर्पज़ ग्राउंड ये हम इस्तेमाल करते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको ऑल्टरनेट रूट मिलेगा। क्या कानून की
मुझे अपने जो हमारे हेल्म ऑफ अफेयर्स है उन पर पूरा भरोसा है कि वो भी नहीं चाहेंगे और हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव हम ले जहाँ पर हम अपनी जो गुजारिशात हैं वो वहाँ पर रखें। मुझे पूरी उम्मीद है और उम्मीद हूँ मैं ये भी, या हमारी जितनी भी फोरम यहाँ पर है, जो सिविल सोसाइटी के लोग आज जमा हुए थे, उन सबको उम्मीद है कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो लोग जो बैठे हुए हैं वो हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे हुकूक के लिए लड़ेंगे। तो लैंड रहीम जी, ये जो आप कह रहे हैं कि रेलवे ट्रैक यहाँ से गुजरेगा, ऐसी अभी कोई बात नहीं है। ये अफवाहें कई रोज़ से यहाँ पर कस्बे में गर्दिश कर रही है। जब सिविल सोसाइटी ने इस चीज़ के बारे में सुना तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी तशवीश हो गई इसमें। और आज यहाँ पर कॉलेज में, हमारे कॉलेज से जो फारिगशुदा तलबा हैं, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो यहाँ पर जमा हो गए और आज हमने इस मसले पर गौर खोज किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि अभी ये सिर्फ अफवाहें हैं और हमें पूरा यकीन है कि इस मसले की संजीदगी को मद्देनज़र रखकर सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। आप जानते हैं कि बारामूला कॉलेज जो है ये इस वक्त एक ऑटोनमस कॉलेज का दर्जा रखता है और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कई साल के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनने की सलाहियत भी अपने अंदर रखता है। कॉलेज को तो और ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी। कॉलेज में जो भी यहाँ पर मुख्तदिर हज़रात आ गए, जो भी यहाँ पर बॉडीज़ आ जाती वो कहती हैं कि कॉलेज में और ज़मीन की ज़रूरत है। अब ये कहाँ तक जायज़ है कि यहाँ पर इस कॉलेज के बीच में से आप एक रेलवे का ट्रैक गुजारें। कॉलेज का ये ग्राउंड महज कॉलेज के तलबा के लिए नहीं है। ये कॉलेज का ग्राउंड यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे जो हैं वो यहाँ पर अपनी तकरीबात, स्पोर्ट्स की तकरीब हो, कोई और तकरीब हो, उसका इनेकाद यहाँ पर होता है। एक और बात, बहुत अहम बात ये कि यहाँ पर इस कॉलेज की अपनी एक शान है, तालीम की अपनी एक शान है। एक रेलवे ट्रैक यहाँ से गुजर के बच्चे किस तरह से तालीम हासिल कर सकते हैं इस शोरगुल में हम हुकाम से अपील करते हैं कि अगरचे ये अभी एक अफवाह है, ये अफवाह जो है इस अफवाह को अफवाह तक ही रहने दें। हमने ये सुना था कि एक प्रिलिमिनरी सर्वे कोई हो गई है। हमारा पुरजोर मुतालबा है, हम इंशाल्लाह मिलेंगे भी मुख्तलिफ जो यहाँ पर जो मुख्तदिर हजरात हैं उनसे भी मिलेंगे हम, और ये जो प्रिलिमिनरी सर्वे है ये सर्वे तक ही रहे और इसके आगे ना चले। ये कहीं और से, किसी और जगह से इस जो रेलवे जो है, रेलवे बारामूला उड़ी तक जो ट्रैक है कहीं और से गुजर जाए तो वो कस्बे के लिए भी, तालीम के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए वो ज़्यादा मौजूद। आज की मीटिंग हमने कमेटी एक बनाई, 7 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल साहब जो वर्मुल कॉलेज अलमनाई एसोसिएशन के सदर हैं, उनकी सरबराही में ये कमेटी यहाँ पर डीसी साहब से, ड्यूकाम साहब से, एलजी साहब से मिलने की कोशिश करेगी और उन तक इस बात को पहुँचाएगी कि सिविल सोसाइटी के को ये बहुत ही नामंजूर है। कॉलेज की ज़मीन जो है इसके थ्रू रेलवे का चलना ना सिर्फ एकेडमिक्स के लिए बल्कि इस पूरी बस्ती के लिए, यहाँ के खेल कूद को जिसको इस वक्त गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, उसके लिए भी ये सिमिक का होगा।